Hello, good morning, all my dear students. First of all, I congratulate all of you for getting admission into the final year. Okay, now this is your Rajwar sir going to teach you paper 1 of final year, that is quantum mechanics, or name in your syllabus, that is elements of modern physics. Okay, modern physics is deal with quantum mechanics. In that first paper you have 4 units. Okay, each unit consisting of one chapter. Okay, and now we are going to start with first unit, that is elements of modern physics. Okay, unit 1 consists of the syllabus likewise what shown on the screen. First of all, failures of classical theory and how classical theory fails, for what classical theory fails. We got that in bracket, that is with respect to black body radiation, photoelectric effect. These are the concepts where classical theory fails. Okay, next topic is Planck constant and light as a collection of photon, de Broglie's wavelength and matter waves, Davison and Germer experiment. All these things we are going to learn. After that, we are going to see wave particle duality, means dual nature of wave, Heisenberg uncertainty principle, then impossibility of particle following a trajectory, then position measurement, next energy time uncertainty, then applications of uncertainty principle, impossibility of an electron being in nucleus, gamma ray microscope thought experiment. Then after that we have some numericals related to these topics. Okay, now I am going to start with the first topic, that is failures of classical theory. One minute. Second page. See, first topic is, that is failure of classical mechanics. You know that what is meant by mechanics. Mechanics is the theory where we deal with the motions, or you can say force, right? But then that classical theory was developed to explain the motional behavior of vehicle, objects, anything. But this theory is failed to explain first stability of atom and molecules. Second, it is unable to explain characteristics, frequency, emission and absorption by the elements. Okay, where up to atomic level. Third, regularities among the spectral लाइन में regularities क्यों होगी, कैसे होगी, इनके बारे में भी ये एक्सप्लेन करने में फेल हुआ है. कौन? क्लासिकल theory. Then if you consider gases, then it was unable to explain specific heat of solids at low temperature. Also black body radiations, photoelectric effect and emission of X-rays, radioactivity and other nuclear activities. Okay, these failures of classical mechanics leads to, or because of these failures of classical mechanics, what you can say, quantum mechanics was developed. Okay, so what are the basis for quantum mechanics?
before going to see that, we are going to discuss black body radiation और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस क्या है वो देखने से पहले हम क्या देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे। क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे? क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन 5 नंबर का टॉपिक देखिए जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। ठीक है बेटा, ब्लैक बॉडी क्या होता है? अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ विच फॉल्स ऑन इट। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी जो सारे के सारे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगी जब उस पर फॉल होंगे। ओके, सो ये ब्लैक बॉडी यानी वो बॉडी है जो सारे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो ना तो रिफ्लेक्ट करेगी ना ट्रांसमिट करेगी, है ना। आइडियल ब्लैक बॉडी ना तो रिफ्लेक्ट करेगी ना तो ट्रांसमिट करेगी, हाँ, बट इट कैन इमिट कर सकती है, ट्रांसमिट नहीं और रिफ्लेक्ट नहीं। तो जो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितने के साथ होगा? 1 के साथ, और उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट R = 0, T = 0 होना चाहिए। एट एनी टेम्परेचर इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ। जैसे मैंने अभी कहा कि वो इमिट कर सकता है, तो वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे वेवलेंथ्स को क्या कर सकता बेटा? इमिट कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? हेंस वी कैन राइट कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी इज इक्वल्स टू 1। ओके बेटा, देन ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में हमको क्या समझ रहा है बेटा कि ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी अगर उस पर क्या इंसिडेंट करेंगे तो, बराबर है ना। तो ऐसी क्या होगी? आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। आर्टिफिशियली हम आइडियल ब्लैक बॉडी बना सकते हैं क्या? तो बेटा परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर्टिफिशियली हम तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसी बॉडी बना सकते हैं। और वन ऑफ द बॉडी ऑलरेडी मेड दैट इज नेम्ड एज व्हाट बेटा? फेर्रीज ब्लैक बॉडी। सी दिस इज व्हाट, क्या बेटा? फेर्रीज ब्लैक बॉडी। फेर्रीज ब्लैक बॉडी इज अ आर्टिफिशियल बॉडी which consists of क्या बेटा? डबल वॉल, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। 1 मिनट, एक मिनट बेटा, हाँ अभी देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट बेटा? हैलो एंड डबल वॉल मेटल स्पीयर हैविंग स्मॉल एपर्चर। देखिए ये ओपनिंग है ना, इसे कह रहे हैं हम। ओके बेटा, दैट इज स्मॉल एपर्चर विच इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड विद द निकेल। सी व्हाट बेटा? विथ निकेल। outer surface is polished with nickel. It has conical projection exactly opposite to the what beta? Aperture. Exactly opposite to the aperture. This was the conical projection. The space between two walls is evacuated. Evacuate क्यों किया जाएगा बेटा? To avoid the loss of हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रेडिएशन। आप सभी को पता होगा ना कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स होते हैं, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड इज
रेडिएशन। फिर से एक बार बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हीट ट्रांसफ़र के 3 वेज होते हैं, एक कंडक्शन, दूसरा बेटा कन्वेक्शन, तीसरा बेटा रेडिएशन। ठीक है ना। तो हमें यहाँ सिर्फ रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम स्पेस बिटवीन 2 वॉल्स क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन। द रेडिएशन हीट enters through small aperture, thus aperture acts as a perfectly black body. Thus aperture acts as a what बेटा, perfectly black body. सी यहाँ देखिए, ये एरो से दिख रहा है आपको इवैक्यूएटेड स्पेस, ये डबल वॉल स्फीयर, ये ओपनिंग या जिसे हम एपर्चर बोल रहे हैं, और ये कोनिकल प्रोजेक्शन। ओके, एक मिनट। अगर हम कुछ बातें जानना चाहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जब हम हीट करेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी को जब हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा। क्या के, कोई भी वेवलेंथ के, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी सारे वेवलेंथ के। राइट बेटा। और दूसरी चीज़, अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी के साथ ब्लैक बॉडी को कंपेयर करते हैं, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स मोर रेडिएशन पर यूनिट एरिया देन एनी अदर बॉडी एट द सेम पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। और बेटा लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक ऐसे 2 है चीज़ें या ब्लैक बॉडीज़ जो 98% तक का क्या करते हैं बेटा, हीट एब्जॉर्ब करते हैं ये, या रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, with this we are going to end the today's class of black body radiation.